IMAFoundation.com is a registered organization in India 2019 and in London 2008. The art organization was established with the core purpose of identifying, supporting, and promoting the best of contemporary Indian artistic talent and traditions in the international arena. In particular, selecting, supporting, and promoting the artists deemed to be the future standard bearers for Indian art. The cultural traditions and endangered arts of India are also showcased and supported to ensure they inspire and engage a new generation. In 2017, IMA was chosen to represent India at UNESCO's World Humanities Conference held in Liège, Belgium, where the endangered arts of India and contemporary art was showcased. IMA continues to be committed to showcasing and cultivating the cultural DNA of the Indian nation. From April 2020 till the present, IMAFoundation.com is offering a live online art project which is focused on offering art training for all interested during the lockdown period. सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं गोविंद विश्वास। मैं अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा मैंने अपने बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट से किया है। फिर उसके बाद हमने एक फाउंडेशन ओपन किया जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर FECB, जिसके बहुत सारे जगह अलग अलग ग्रुप्स हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका जो आज की जो बातचीत का जो सारांश है वो स्कॉलरशिप और फेलोशिप को लेकर है। तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ेगी। तो अब मैं माइक दादा को सौंपता हूँ, बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। Okay, so Nilisha, can you introduce little bit about you, please? Yes, sir. So I'm Nilisha, and I completed my bachelor's in 2018 and master's specializing in portraiture in 2020 from Sir J.J. School of Art in Mumbai. So currently I'm freelancing, and I received the Elizabeth Greenshield Foundation grant in 2021. So I have been working at home and creating my portfolio for the same since the past 1 year. And currently I'm working at home. So my studio is at my home itself. Fantastic. And my name is Radha Vinod Sharma. I am a founder of imafoundation.com. My motto is young artists should get benefit. Our countries, young artists should not get blinded by galleries. Of course, we need gallery. If they are helpful for our country, why not until today, Indian contemporary art is not developed in our house, our country? Because there is lots of manipulation. Don't worry, I don't want to go that channel. We are going to talk about what is possibility after pass out. Myself, I come from slum area, Tripura, right? And I was that sure I'm going to be continue my painting. I don't know. I was going to do job. I did try to do job Israel. I got appointment Israel, but that time I got Kanoria Award, 91. That time I got Greensill Award, 1992. So you know, everybody should get opportunity. There is 3 different young people. One is difficult with understanding teacher and difficult with understanding sequence. They might be doing after pass out very well if they continue with their beliefness. And another is very good in skill from childhood. They are doing very well, but after pass out, they don't know what to do. They get hooked in galleries and they get. Number 3, big possibility, they don't know what to do. If this fund come, yeah, like a Greensill is now 15,000, isn't it, Nilisa? Yes, sir, it is 15,000. Our time was 10,000, only 2.5 lakhs our time.
is dollar is In like fact, actually, I think, sir, it is 17,000 now. During my time, it was 15. Now it is increased even more. so. Our time 22 rupees is the $1 Canadian. Now is nearly 45 or something, isn't it, Nilisa? Yes. So Nilisa got the 15,000 Canadian dollar, means just multiple yourself. So Govind, you got the, पुलाक क्रैशनर फाउंडेशन ग्रांट how much is that, Govind? फर्स्ट टाइम मिला था मुझे $12,000 American. हाँ, उस टाइम मेरे ख्याल से करीब 9 लाख रुपए थे। और जो अभी इस बार मिला था मुझे $16,000 2018 में। मतलब तो- प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है ना, वो तो। हाँ। ग्रीन सील का अलग है, गोविंद का जो स्कॉलरशिप है वो अलग है। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, तुम्हारा बजट के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, इसके अंदर रखा होगा ना, इतना तक अप्लाई कर सकता है ना गोविंद? उसमें $5,000 से लेके $30,000 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली उसमें क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका जैसे अर्निंग है, आप कॉलेज से निकलते हैं, आपका कमर्शियल हुआ कुछ तो भी चलता है, उससे आप ईयरली कितना अर्निंग कर रहे हैं और आपका पूरा साल भर का खर्चा कितना है, तो दोनों के बीच का जो रेशो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग उसके हिसाब से देते हैं। जैसे अगर बोले तो मैंने उसमें दिखाया था कि मेरी जो ईयरली इनकम है वो $4,500 है और मेरा खर्चा टोटल मिला के अगर मैं स्टूडियो रेंट पे लेता हूँ, हायर करता हूँ, तो $7,500-8,000 तक जाता है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके मैंने उनसे शुरू में मांगा था, ऐसे मुझे आइडिया नहीं था, बट मैंने $15,000 मैंने मांग लिया था, तो उन्होंने मुझे दिया $12,000। और सेकेंड टाइप जब मैंने मांगा था $15,000, उस टाइम भी मैंने मांगा था, बट उन्होंने $16,000 दिया, क्योंकि मेरे काम को और मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है, मैंने किस प्रोसीजर के लिए मांगा है, किस चीज के लिए मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ, वो लोग इस चीज को ये करते हैं। और एक सही बात बताऊं कि वो लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे साथ एक साथ इंग्लिश का बोझ पड़ा, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसे अच्छे वर्ड्स लिख के कम्युनिकेशन कर पाऊँ। तो मैं वो ट्रांसपेरेंसी से मैंने उनसे बात किया। उसके सेकेंड डे से जब उन्होंने मेल से कम्युनिकेशन किया, हर एक लाइन अलग अलग करके भेजा उन्होंने, ताकि मैं उनको समझ पाऊँ। तो वो चीज वो है ना, आपकी ट्रांसपेरेंसी आपको बहुत कुछ दिलाती है। ये तो मैंने हर जगह मुझे मिला है कि अगर आप सीधा सरल स्वभाव से आप किसी को बोलते हैं कि मुझे ये चीज नहीं आता, वो आपको गाइड करने की भी कोशिश करते हैं, वो बहुत अच्छे से। लेकिन इंडिया का मुझे पता नहीं, इंडिया में बहुत ये सारी चीजें बहुत उटपटांग हैं, तो मैं यहाँ का तो नहीं मुझे आइडिया है ज्यादा, लेकिन मैं वहाँ का बोल सकता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज करके उसका कवर लेटर कर सकते हैं, बाद में उसको रिफाइन किसी से करवा सकते हैं, लेकिन जितना आपको आता है आप पहले अपने हिसाब से उसकी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड गोविंद। और यही नहीं है, स्कॉलरशिप बहुत सारी है। नीलिसा, आपको भी फायदा हुआ गोविंद की कहानी से, और सच्ची कहानी है। और टेड मॉडर्न आर्ट गैलरी जो लंदन में है, वहाँ पे एक किताब मिलता है हर साल। ओके। तो इंग्लैंड ऐसा जगह है, पूरा डाटा कलेक्ट करता है वर्ल्ड की, कहाँ पे स्कॉलरशिप हो रहा है, कहाँ पे रेसिडेंसी हो रहा है, कहाँ पे कैंप हो रहा है। मैं हर साल वो किताब खरीदूंगा, उसकी जो जो एरिया सही है वो मैं 10-11 दिन टाइम लगा के देख लूंगा, उसको आप लोग को सबको शेयर करूंगा। इसमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग कैंप रेसिडेंसी जो जितना अटेंड करेगा ना। निलिसा, तुमको क्या लगता है भाई, तुमने कैंप अटेंड किया, कैसा, अच्छा लगा कि नहीं निलिसा? बहुत फायदा होता है सर, क्योंकि हम लोग बहुत आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सिर्फ मतलब ऐसे बोलते हैं कि आर्ट कभी आइसोलेशन में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है अलग अलग आर्टिस्ट से। और सिर्फ आर्टिस्ट से नहीं, तो आर्ट फील्ड में जितने भी प्रोफेशंस हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ भी आपको बातें करनी पड़ती है, तब जाके कुछ आइडियाज का लेना, इंटरेक्शन होता है। और अब हमारा भी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होता है उसकी वजह से। तो आई थिंक कि कैंप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट काम करने मिलता है। और
मेन मतलब आपको सब आर्टिस्ट जो है वो नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है और उनके भी विचार आपको जानने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये साइड में जो 6 वीडियो है ना, हाँ उसमें से हाउ टू इमेज मेक इमेज, हाँ हाँ ये वाला छोड़ के ये हाँ इसमें अभी चेंजेस आए हैं। हाँ इसमें चेंजेस ऐसे आए हैं कि जैसे हम लोग एक प्रोफेशनली जब हम काम करके उसको फोटो खींच के नीचे डिटेल डालते हैं, तो वो चीजें नहीं डालनी है। अगर पास आउट होने के बाद आप अप्लाई करते हैं तो वो इमेज जो है ना नॉर्मल रखना है। ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, पिछले संडे को ही शायद, जिसमें ये चीज क्लियर कट बोला गया है कि उसमें वो डिटेल नहीं डालना है, क्योंकि उसमें नाम डाला हुआ रहता था, टाइटल, साइज, मीडियम, ये सब डाला हुआ रहता था। तो ये जो ऊपर के 6 वीडियोस हैं उसमें से वो वाला इमेज मेकिंग वाला वो छोड़ के बाकी सारे आप लोग एक बार सुन लेना, एक एक बार। नहीं आए तो ऊपर वहां पे नंबर दिया हुआ है मेरा, आप लोग मैसेज ड्रॉप करके हम फोन पे बात कर सकते हैं। तो उसमें मेन वही चीज है कि पहला वही कवर लेटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी शुरुआत में मतलब मैं तो अभी तक लगभग है ना 100-150 लोगों तक ऐसे लिखवा चुका हूँ, पर फिर भी मैं एक बार उसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे ना इंग्लिश के, उसमें टू द प्रिंसिपल ऐसे करके, सेम वही फॉर्मेट में उनको है ना ये करना है, एड्रेस करना है कि टू पुलाक कृष्णर फाउंडेशन, सब्जेक्ट कवर लेटर फॉर द ग्रांट ऐसे करके। फिर रिस्पेक्टेड सर, मैं मेरा नाम, मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, मैं बैचलर समय में क्या करता था, मेरे जो मैं अगर जैसे मैं विलेज से आया, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा विलेज है, मैं वो भी मेंशन किया मैंने कि मैं यहाँ आने से पहले मैं विलेज लाइफ में था। सिटी में आने के बाद मुझे ये सारी चीजें समझ में आई कि कैसा क्या होता है, तो मेरे काम के ऊपर एक वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं वो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने ये सारी चीजें लिखी थी कि मैंने किस तरीके से उसको एक्सप्लोर किया। तो वो सारी चीजें ऊपर के 4 लाइन में मैंने लिखा कि बैचलर में मैंने इस सब्जेक्ट पे काम किया, फिर मैंने मास्टर्स में किस सब्जेक्ट, क्योंकि वो कवर लेटर है, सिर्फ आपका पूरा पूरा एप्लीकेशन का जजमेंट एक पेज से ही हो जाएगा कि आपने पूरे एप्लीकेशन में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। आप अगर फर्स्ट कवर लेटर में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब भी मेरे ख्याल से उसमें नंबर अगर देखें ना तो लाख 1.25 लाख फॉर्म उसमें भरे हुए हैं, लोगों का देखा हुआ ऐसा 18,000 ऐसे समथिंग कुछ है जिसमें वो दिख रहा था। तो वो फर्स्ट कवर लेटर जो है वो इतना उसका उसमें ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए कि आपके जो बाद की चीजें हैं ना लोग पलट के देखें। तो वो 4 लाइन में वो खत्म किया। फिर 2 लाइन में 2-3 लाइन में आप मास्टर्स में क्या कर रहे हैं वो चीजें लिखें। तो मैं जब फर्स्ट टाइम में मास्टर्स में कर रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने लिखा कि जो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में वाइपिंग पेपर होता है जो डस्टबिन में फेंक देते हैं, उन चीजों को मैं पेस्ट करके मैं अपना आर्टवर्क्स का सरफेस क्रिएट करता हूँ। फिर मैंने दोनों साइड उसका पेंट किया। वो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाके देख सकते हैं, आर्ट वाई गोविश नाम से इंस्टाग्राम में पेज है, या फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के उसमें जाएंगे तो ऊपर प्रोफाइल में पूरा दिया हुआ है। तो वो फर्स्ट टाइम का काम था कि वो जो फर्स्ट टाइम मुझे जिस कामों पे मिला वो करीब उसकी हाइट 12-12 फीट थी और 4 फीट जितना वो चौड़ा था, दोनों साइड पेंटेड था। तो एक होता है शुरू में जब कॉलेज में होते हैं तो एक चीज है कि आपको कहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगा इसकी आप उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो होगा कि कोई लोग अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, लेकिन जब उस पर आप एक बोलते हैं ना वो दमदार हथौड़ा जब तक नहीं मारे तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मुझे ये नहीं था कि लोग बोलते थे क्या करता है, कचरा बिनने आ जाता है रोज ग्राफिक्स में। मैं बोला ये मेरे काम की चीजें हैं और मैं करूंगा, और इसके लिए मैं जयश्री दी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। उनका हमने एक टॉक किया था बहुत पहले, तो उन्होंने बोला था कि उनका काम जो अब जब वो लंदन गई तो उनका पर्स ये सब चोरी हो गया, तो उन्होंने एक पेपर हाउस से पेपर फैक्ट्री के पुराने पेपर यूज कर करके काम किया था। तो मेरे को वो बात ध्यान थी कि है ना उस तरह की चीजें जब आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो एक तो जब मैं वो काम कर रहा था तो मेरी स्थिति कुछ ऐसे ही थी। तो वो काम मायने रखता है ना कि मटेरियल, ये चीज मैंने इसके बाद सीखा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं ना, जैसे कवर लेटर का हो गया, फिर उसके बाद जो आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपके काम में कौन से ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप इसको, क्योंकि मोस्टली जब तक फाइनल ईयर आप निकलते हैं तब तक सबका एक आर्टिस्ट स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। फिर उसका जो थर्ड है वो है सीवी। तो सीवी में भी वो ऐसे ही दिया हुआ है कि पहले एजुकेशन, फिर सोलो शोज, फिर ग्रांट या फिर अवार्ड जो भी कॉलेज में रहते आपने लिए हैं। फिर अगर सोलो शो हुए हैं एक दो तो वो एक आध 2 साल में हो जाता है। हालांकि अगर नहीं हुए हैं तो वो लोग मानते नहीं, क्योंकि उसका मेन फॉर्म पे भी वो लोग ये करते हैं। तो वो चीजें मैंने अभी तक है ना, मैं स्क्रीन शेयर में वो चीजें करके मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पूरा लॉग इन करना पड़ेगा वो सारी चीजें। तो जब आप ये हो, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें होने के बाद फिर जो 10 काम का इमेज आता है वो आपको सिर्फ एक A4 साइज के पेपर पे, जब आप फोटोशॉप में उसको एडिट करें, सिर्फ उस पे आपका इमेज उठा के पेस्ट करके रखें, और उसका जो नाम होता है वो इमेज के ऊपर ना लिखें। जो उसका फाइनल नीचे फोल्डर होता है उसमें आपका सरनेम, इमेज #1 ऐसे करके आपको 10 काम सेव करके रखना है। और जब आप फॉर्म फिलअप करें उसमें बहुत सारी चीजें मांगते हैं शुरू से। आपको जो मैं मेरे को जितना याद है मैं बताऊं तो, पहले आप लॉगिन करेंगे, उसका 2 बार पासवर्ड डाल के एक अच्छा वो फॉर्मेट कर लेंगे। वो 3 महीने तक वैलिड रहता है। आप 3 महीने तक रोज थोड़ा 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 भरते जाएं, और जहां तक भरे वहां नीचे आता है सेव, और वैसे करके कुछ आता है, तो उस पर आप सेव कर दें। तो वो वापस दूसरे दिन जब आप भरेंगे तो वहीं से शुरू होगा। तो ऐसे करके आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर, वो 3 महीने तक का समय देता है। और जब आप फिलअप करते जाएंगे, सारा चीज फिलअप करने के बाद उसमें 3 लोगों का रेफरेंस मांगता है। तो उसमें मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने 3 लोगों में से 2 अपने कॉलेज के टीचर्स का दिया था, और एक जो थे मेरे एक सीनियर थे उनका दिया था। तो कई बार जैसे होता है ना कि आर्टिस्ट कुलीग का हो, मैंने उसमें मनीष पुष्कले का नाम था, एक बार सुरेश सर का नाम था, एक बार इंद्रो सर का नाम था। तो ये लोगों का ऐसे होता है कि वो आपके काम को जानते हैं, आपको जानते हैं, तो उनके पास वो लोग मेल करते हैं, और मेल में वो लोग आपके बारे में, आपके काम के बारे में 4-5 लाइन लिख के भेज देंगे, तो उसमें उन लोगों का हो जाता है। तो इस तरीके से वो रेफरेंस वाला 3 लोगों का चाहिए होता है। फिर आएगा आपका 3 साल का बजट, मतलब 3 साल में आपने कितना अर्निंग किया। तो कॉलेज में रहते तो हम लोगों की अर्निंग ऐसे ही होती है। तो हम किसी में मैंने लिखा था 800, $850, किसी में किसी साल 2 लाख रुपए हुए तो उसका मतलब वो करके देखा कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने जितना डॉलर हो रहा था वो लिख दिया। तो ऐसे करके लिखा। फिर उसके बाद एक चीज और पूछता है, जो आपका ईयरली इनकम है टोटल। आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्लास ले रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो उसका कितना अर्न कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ कमा रही है तो भी उसमें वो पूछता है कि वो कितना कमा रही हैं। कोई सोशल जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है, वो भी उसमें लिखना होता है डॉलर में कन्वर्ट करके। और जो आपका टोटल खर्चा है वो भी आपको उसमें पूछेगा। अगर आप स्टूडियो रेंट लेके बिना जॉब किए आप खर्चा करते हैं तो टोटल आपका कितना खर्चा होगा। तो अगर जैसे आपकी कमाई मान लीजिए है $5,000 और आपका खर्चा है 10-15 हज़ार डॉलर, तो उसका बीच का जो रेशो है वो आप मांग सकते हैं। तो और एक खास बात, वो कवर लेटर में जितना आप मांग रहे हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है। जैसे आप अगर $10,000 मांग रहे हैं तो कवर लेटर में बिल्कुल लिखिए एक एक बीच के पैरा में कि मुझे $10,000 की जरूरत है, मुझे $12,000 की जरूरत है, और उसका आप क्या यूटिलाइज करेंगे वो भी 2 लाइन में लिखिए। फिर अगर उसके नीचे जैसे वो काइंडली लिखते हैं ना, तो अगर उसमें मांगते हैं, ये होता है कि अगर आपको मिलता है तो ये आपके आर्टिस्टिक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो बस इतना करके ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है। 2-2 पेज, एक पेज में सिंपल एक पेज लिख के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और बाकी सारा क्राइटेरिया तो उसमें दिया हुआ है साइट पे, कैसे उसके फॉर्म को, फाइल को कैसे सेव करना है, सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। वो भी आप लोग एक बार देख लेंगे। और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है तो पूछ सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। तो ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मतलब
जैसे ग्रीन शील्ड में ऐसा है कि प्रोजेक्ट आपका ये भी हो सकता है कि आपको एज अ सपोर्ट फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आपको हम आपका जो करियर है आर्ट में वो आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। हाँ तो ये प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है इस ग्रांट के लिए, या फिर जी ऐसे कोई। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जो मिला था ना मुझे, तो फर्स्ट टाइम में मैंने इसी के लिए मांगा था कि एक जो मेरे अपना सारा कुछ जो एक होता है ना फाइनेंशियली अगर स्टेबिलिटी हो तो हम सारा कुछ स्मूथली कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वो उसके लिए उनने दिया था। सेकेंड टाइम मैंने उसमें लिखा था कि हर इंडियन आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि जहांगीर में एक सोलो शो हो, तो मैंने उसमें मेंशन किया कि मेरा एक ये है, मैंने जहांगीर का फॉर्म भरा हुआ है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं ये सोलो हर कोई करना चाहता है, मैं भी करूंगा। तो ग्रांट तो मिल गया बट जहांगीर का गैलरी नहीं मिली टेक्निकल रीजंस की वजह से। फिर मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला कि तू री अप्लाई के लिए कर दे, लेकिन फिर मैं बोला कि यार एक बार रिजेक्ट हो गया तो मेरा मन नहीं। तो ये चीजें मैंने बाद में समझी कि यार बहुत सारे लोगों ने बोला, जब ये टॉक शो शुरू हुए ना, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। तो ये चीजें तो होती हैं, मतलब इसीलिए मेरे को कई बार है ना, ये जो इंडिया में सिस्टम है ना उसमें बहुत बहुत अभी भी झोलझाल है। तो वो चीज मैं अभी रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि ये सब सारी चीजों को है ना सुधारने की बहुत जरूरत है। मेरा बेटी में भी देख रहा हूँ, बेटा में भी देख रहा हूँ, हाँ इसमें ना है रिलीजियन, ना हाँ है बेसबास, हाँ ऑनेस्टी है। नया जो पीढ़ी है और लोग हाँ ने हाँ गूगल सर्च कर करके 5-6 साल से बहुत कुछ सीखा है। हाँ प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, और हम लोग जितना भी हो सके हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग सीखेगा भी उन लोग से, बराबर बिल्कुल ना। बिल्कुल तो नया पीढ़ी इंडिया बदलेगा, और सही इंडिया बात जब है। बदलेगा कंटेम्पोरेरी वर्क भी इंडिया में महत्व आएगा, जैसा कि क्रिकेट और बॉलीवुड में है। बिल्कुल मेरे को एक चीज और ध्यान आया कि जैसे वो इमेजेस तो आपने सेव कर दिया, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक लिस्ट बनाना होता है जिसमें आप 10 काम के डिटेल डालते हैं, जिसमें आपका नाम, फिर इमेज #1, काम का टाइटल, काम का साइज, काम का ईयर, ऐसे करके उसमें पूरा डालना होता है। वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो जब जैसे आप वो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में जो लिखें उस हिसाब से आप इमेज को सेव करें, ताकि वो जब स्लाइड्स में दिखाएंगे कि ये काम ये व्यक्ति का है, इसका टाइटल ये है और इसका साइज ये है, तो वो चीजें भी मायने रखती हैं। मतलब मैंने दोनों बार जो वो किया ना, मैंने खूब बड़े बड़े काम उसमें काम के साथ अप्लाई किया, तो मुझे कई बार लगता है कि बड़े काम का बेनिफिट होता है। और हालांकि कई ऐसे लोगों को भी मिले हैं जिनके काम इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़ा ये है, लेकिन वो लोग क्या देख के डिसाइड करते हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मेरे से जितना हो सका मैंने लोगों को ये इसके बारे में शेयर किया है। और जब ये हो रहा था तो मैंने ये यूट्यूब पे बना के डाला कि ताकि जो लोग नए आए वो लोग भी देखें, वो भरें, अप्लाई करें, क्योंकि वो लोग है ना हर साल 200 लोगों को देते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो 200 लोगों में अगर अपने इंडिया से 4-5 होते ही हैं, तो हर साल अप्लाई करना चाहिए हर किसी को। गोविंद, तुम्हारा यूट्यूब का लिंक बता दो सबको। ये ये अभी जो उसमें है ना, गोविंद विश्वास नाम से ही है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसमें आप लोगों को बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं ना उन लोगों के लिए बहुत सारे टॉक्स हैं, मतलब उसमें नीलिशा जी का है, दादा का है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग 200, 250, 250 तक होने को गए हैं, जिसमें गैलरिस्ट हैं, क्यूरेटर्स हैं। और कल का टॉक भी जिनसे होने वाला है वो लीना विंसेंट है, वो गोवा की एक क्यूरेटर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो जुड़ रहे हैं, जो अपने आर्ट जर्नी को शेयर करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे टॉक्स हैं, सबका जर्नी अलग है, सबके काम के पीछे का बेसिक एक आइडिया जो होता है वो अलग है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से सुनना चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है कि लोग बोलते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो सर तो बताते जा रहे हैं, हम वो करते जा रहे हैं। वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जब काम करने के लिए बैठते हैं और जब आप फील्ड में काम करते हैं, तो दोनों में है ना डिफरेंस होता है, कॉलेज में और बाहर। तो वो चीजों को आप वो सारी चीजें सुनेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसा कि तुमने शैलेश पटेल का भी यूट्यूब में डाला है। शैलेश हाँ पटेल जो है बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है गुजरात के, अभी हाँ यंग, हाँ यानी 1992 में उसने एम फाइन किया है पेंटिंग में।
हाँ ये शैलेश पटेल जो है ये कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन 1992 जब पास करके निकला है ना, उसके बाद 3 साल या 4 साल काम किया है। गुजरात की अभी बेस्ट कंटेम्पररी आर्टिस्ट है, इसलिए बता नहीं सकता है कि इसका अंदर क्या छुपा हुआ है। सही बात है। तो कभी कभी टीचर लोग को समझना मुश्किल हो जाता है बच्चे लोग के ऊपर। तो इसीलिए प्लीज बिलीव करिए, स्कॉलरशिप ना बहुत जरूरी है, अपने आप की विश्वास बहुत जरूरी है। कभी कभी स्टाबन भी बहुत काम की चीज होता है। थैंक यू वेरी मच गबिन, ये थैंक यू दा, फायदा यहाँ होगा। आपने शेयर थैंक यू किया। सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छे तरीके से आपने सिंपली एक्सप्लेन किया है सब, और कवर भी किया है सब कुछ। और किसी को कभी भी जरूरत हो, मैं 24/7 मेरा फोन चालू रहता है, आप लोग कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। गबिन का 2 साल की बेटी भी है, बी केयरफुल, जब वो बोलता है लेकिन फोन भी उठाता भी है। लेकिन गबिन पीछे से रोने की आवाज आ सकती है तो ये सब चीजें चलती रहती है, इसलिए गबिन का मेरा साथ मेरा गबिन अभी का टाइमिंग क्या होता है पता है? अभी मेरा काम करने का टाइम होता है 3-4 बजे तक मैं काम किया, फिर मैं पूरा दिन भर मेरे बच्चों के साथ निकलता है, इसको संभालो, वो करो, ये सारी चीजें। एक्चुअली साइनूर ने मेरे को बोला कि काल कुछ करते, मैंने बोला चल आज काल करते संडे। तो हाँ, गबिन को मैंने फोन करके उठाया, तो उठाया नहीं, उसका बेटा बुखार था। आज ठीक है वो। अभी तो है, लेकिन हाँ, ये सिचुएशन, गोविंद बहुत दिल से साफ सुथरा है, लेकिन ज्यादा मत जलाना गोविंद को। वही नहीं, चार्ल्स सोयल स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ बंद हो गया। चार्ल्स स्कॉलरशिप में दो है, एक है 1 साल का एमए कोर्स और 3 महीने का प्रोफेशनल आर्टिस्ट रेसिडेंसी। एक गैशक स्टूडियो चलाता है, एक डेल्फिना स्टूडियो चलाता है, जिसमें मैंने स्कॉलरशिप मिला था, दोनों ही मिला था मेरे को, लेकिन मेरे को 1 साल का मिला था। तो आई थिंक जब एलिजाबेथ ग्रीनशील्ड फाउंडेशन ग्रांट की बात आती है, तब उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके वेबसाइट पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इन डेप्थ दिया हुआ है। मतलब ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसका उन्होंने आंसर उसमें नहीं है। तो उसमें मैं अभी वो वेबसाइट को यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और वो वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि अगर कोई न्यू है जो वेबसाइट को देख रहा है, उनको भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि नेविगेट कैसे करना है उस वेबसाइट को। सो ये है एलिजाबेथ ग्रीनशील्ड फाउंडेशन ग्रांट की वेबसाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शायद कभी कभी हो जाता है कि उसका जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच हो सकती है, तो उसको इंग्लिश में आपको चेंज करके फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इनके इंडेक्स में अबाउट ग्रांटीज, मतलब जिनको जिनको ग्रांट मिला है वो सब लोगों के काम, फिर गैलरी, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, और एफएक्यू। तो इसमें मैं बोलूंगी कि ये जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, एफएक्यू और अप्लाई। तो इसमें पहले तो क्या करना पड़ता है वो तो मैं बाद में, 1 मिनट पहले मैं एलिजिबिलिटी पे जाती हूँ। तो एलिजिबिलिटी में उन्होंने दिया है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जब आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें पहली बात तो आप यंग आर्टिस्ट होने चाहिए जो अर्ली स्टेज में है अपने करियर के। जैसे अभी अभी कॉलेज जिनका खत्म हुआ है, या कॉलेज खत्म होके 2-3 साल हो गए तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोग जो है उनको वो प्रायोरिटी देते हैं ज्यादा करके। और वो दूसरी एलिजिबिलिटी मतलब मेन ये है कि आपका काम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट या नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट नहीं होना चाहिए, आपका आर्ट फिगरेटिव होना चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट या फिगर को बेस होना चाहिए आपके आर्ट में। तो मतलब रियलिस्टिक ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेस है वो फिगरेटिव होना चाहिए। तो उसमें मतलब कुछ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म होने चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो सामने फॉर्म है वो आपको समझ में ही आए, उसका मीनिंग हो, लेकिन इनको मीनिंग चाहिए उस फॉर्म के पीछे। तो ये उनका बेसिक ये है एलिजिबिलिटी। तो पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ये 4 जो स्ट्रीम्स है उसके लिए ये ग्रांट है, और इससे अलावा कोई भी दूसरे एक्टिविटीज या डिसिप्लिन्स को वो फंड नहीं देते। तो इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, एनिमेशन, डिजिटल आर्ट, ये क्राफ्ट, डेकोरेटिव आर्ट,
ये सब उनको नहीं चलने वाला। तो करियर स्टेज भी अर्ली स्टेज ऑफ करियर होना चाहिए, एमर्जिंग आर्टिस्ट होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस और मैच्योर आर्टिस्ट के लिए ये ग्रांट नहीं है। तो फिर जो अभी अभी कॉलेज में है अभी, या फिर कॉलेज से बाहर निकलने वाले हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। तो जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा मास्टर्स खत्म हुआ और पैंडेमिक शुरू हो गया। तो पैंडेमिक में मुझे पोर्टफोलियो करने के लिए, बिल्ड करने के लिए काफी टाइम मिला। और फिर 1 साल तक मैंने काम करने के बाद मैंने 2021 में फरवरी में मैंने इस ग्रांट के लिए अप्लाई किया। तो इस ग्रांट के लिए ऐसे कुछ नहीं है कि आप इंडियन ही होने चाहिए या कोई, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। एज आपका एटलीस्ट 18 इयर्स होना चाहिए और 41 इयर्स से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। जब आप पहले ग्रांट के लिए सबमिशन देते हो तब, अगर आपको पहला ग्रांट मिल चुका है और आप दूसरा और तीसरा ट्राई कर रहे हैं और तीसरे ग्रांट मिलाने तक अगर आपका एज 41 से ऊपर हो जाता है, बोलते हैं कि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। डेडलाइन उनका ऑल ओवर द ईयर होता है, ऐसे कोई डेडलाइन नहीं है। तो ऑल ओवर द ईयर जब भी आपका पोर्टफोलियो आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि अभी मेरा जो काम है वो इस सब एलिजिबिलिटी में बैठता है और मतलब मैं अभी अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका कोई ऐसे डेट नहीं है कि आपको तभी अप्लाई करना है। आपको तो हाँ, डायरेक्टली पहली बार में मिल गया, हमको भी पहली बार में मिला है, बराबर ना? राइट राइट हमारा टाइम में राइट तो 10,000 था, 1992, 10,000 कनेडियन डॉलर। और आपकी टाइम राइट 2021, 15,000 राइट डॉलर एंड एक चांस में मिला है आप भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या राइट। है, कोई कोई बच्चे लोग एक चांस में शायद नहीं मिलेगा, टेंशन मत हम्म। लीजिए, आप फिर अप्लाई नो कर। प्रॉब्लम। यस यस, आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये एक चीज है एक्चुअली। हाँ, ये मेन है इसके बारे में। अगर आपने एक बार अप्लाई किया और आपको नहीं मिला, तो आप 2 साल तक ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको 2 साल के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर समझो मैंने आज अप्लाई किया ग्रांट के लिए और मुझे नहीं मिला, तो आज के दिन, मतलब आज डेट क्या है, तो आई थिंक आज 5th मई है, सॉरी जून, हाँ, राइट सर? या 5th जून। तो आपको 5th जून 2023 में, आप 22 में आपने अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, तो आप 5th जून 2004 में या 5 में आप 2025-24 में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली आज के दिन के बाद 2 साल के बाद, इस डेट के बाद, इस डेट पे ही 2 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यानी अगर आपका 700 रिजेक्ट होता है। 730 दिन की बाद आप आराम से अप्लाई कर सकता है। यस यस। नहीं, वो ये लोग लेटर भेजते हैं। मतलब वो लेटर, जैसे मैंने भी अप्लाई किया था कॉलेज हाँ से जब खत्म हुआ हाँ था, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो एक दोनों जगह से आपको लेटर आता है। वो पोलाक से भी आता है, ग्रीन शीट से भी आता है, 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग बाकायदा लेटर भेजते हैं लिफाफे में। तो ये ओके। पढ़ने वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरे ऐसे जानने में 2 लोग हैं जिनको 2 बार मिला है ग्रीन शीट में। ये हाँ, पोलाक मिलता नहीं है, मिलता है पढ़ने वालों को। आपकी जो वार्क जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर डालिए। बिल्कुल, बट बहुत हेल्प पहले मिलता है। आपको बट पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको आपका काम पहले सेटिस्फैक्टरी लगना चाहिए। क्योंकि मैं राधा विनोद सर से 2000 आई थिंक 18 में ही मिली थी। 19 मतलब 19 मिली नहीं थी 19 19 में, मिली थी। 2019 में सर ने मुझे कांटेक्ट किया था और तभी मुझे इस ग्रांट के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने मेरा वर्क भी अप्रिशिएट किया था। लेकिन उस टाइम पे मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थी और मुझे मेरा काम बहुत एकेडमिक लगता था उस टाइम पे। मतलब मुझे उतना अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि मेरा काम जो है वो अभी और डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए मैंने इस ग्रांट के लिए उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया। मैंने 2021 में जब मुझे लगा कि हाँ अभी मेरा काम, मुझे लगता है कि इस ग्रांट के लायक है, तब मैंने उसको उसके लिए अप्लाई किया। तो जल्दबाजी मत करना। मैंने तो 2 साल लिए सोचने के लिए, सब कुछ करने के लिए। 2-3 महीने तो मैं सिर्फ आर्टिस्ट स्टेटमेंट और वो सब जो मटेरियल लगता है इसके लिए सबमिशन के लिए, वही लिख रही थी।
तो आराम से और एकदम मतलब प्रॉपर सबमिशन करना है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप वापस 2 साल सबमिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रिपेयर होके सबमिट करना अच्छा है। तो उसके पहले आप अगर अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ भी चुके हो, तो भी आप, मुझे लगता है कुछ 3, 4 या 6 महीने आप सिर्फ ये वेबसाइट को ठीक से पढ़ना, हर एक चीज क्या उनको एक्सपेक्टेड है, क्या नहीं है, आप इस क्राइटेरिया में बैठते हो नहीं बैठते हो, और उसके बाद में ही आप अप्लाई करने के लिए शुरू करना। इसमें अप्लाई करने के लिए पहले तो जैसे सर ने बोला, पोलॉक के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है आपका, जिसमें आप लॉग इन करके आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं, और फिर आप जहाँ पे सेव करके छोड़ देते हैं वहीं पे आप जाके वापस से कंटिन्यू करके एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, सिर्फ इसमें आई थिंक 3 मंथ्स का ऐसे कुछ ये नहीं है। इसमें आप कभी भी लॉग इन करके आप आपका फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन डेडलाइन ऑल ओवर द ईयर शुरू होता है। तो इसमें एप्लीकेशन जो आप एक बार लॉग इन करने के बाद आपको टास्क रहते हैं इसमें, मतलब आपको एक एक असाइनमेंट, मतलब टास्क रहते हैं। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और हर एक टास्क के ऊपर एक टास्क इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि एग्जैक्टली उसमें आपको क्या करना है या क्या होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन में मतलब इतना डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि आपका जब आप आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिखते हो, तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, तो वो लिखने के बाद नीचे आपको मेंशन करना है उस डॉक्यूमेंट में कि इसमें मेरे इतने वर्ड्स हुए, ताकि उनको देखते ही समझ आता है कि आपने जो उनका कुछ 500 या 200 वर्ड्स का जो डेडलाइन है वो आपने ठीक से कंप्लीट किया है। तो ऐसे हर एक टास्क इंस्ट्रक्शन में आपको उस टास्क के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं पहले तो एप्लीकेशन में। इसमें आपका नाम, फिर आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, सिटीजनशिप, कंट्री, आप कौन से कंट्री में रहते हो, ये सब चीजें। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, या फिर सिटीजनशिप का प्रूफ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे कुछ आपका जो प्रूफ है आइडेंटिटी का, वो आपको अटैच करना पड़ता है। उसमें आपको नेक्स्ट उन लोग पूछते हैं कौन से कॉलेज से आप पास आउट हुए हो, कौन से कॉलेज से आपने आपने स्टडीज किया है। तो ये भी काफी डीप में उन लोग पूछते हैं कि कौन से स्कूल में थे, फिर कौन से कॉलेज में थे, फिर बाद में कौन से इसमें से आपने आर्ट एजुकेशन लिया, तो ये सब वो पूछते हैं। फिर एग्जीबिशन में भी, एग्जीबिशन का पूरा नेक्स्ट, मतलब पिछले 5 साल में आपके जो भी एग्जीबिशन हुए उसकी लिस्ट वो लोग मांगते हैं। फिर आपके जो भी अवार्ड्स है वो आप मांगते हैं। तो बाकी सब ग्रांट्स में आप जब सीवी दे देते हो तो ये सब इंफॉर्मेशन उसके साथ ही दे देते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने फॉर्म के अंदर ही ऐसे अलग अलग सेक्शन बनाए हैं जिसमें आपको ये सब फिल आउट करना है, और टास्क इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिए होते हैं वो रीड करके, वो पढ़ के आपको वो फिल आउट करना है सब कुछ। बाद में पोर्टफोलियो, मतलब जो आपके काम के जो वर्क्स है, फोटोज है, वो आपको अटैच करने हैं। तो इसमें 6 काम वो मांगते हैं, तो ना ज्यादा ना कम, सिर्फ 6 काम आपको अलाउड होते हैं इसमें अटैच करना। तो ये काम को सिलेक्शन करना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 6 काम आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप किस टाइप का काम करते हैं ये उनको सिर्फ आपके 6 काम देखने के बाद पता चलने वाला है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये ग्रांट लेके अगर आगे जाके कुछ स्टडी करना है, कोई इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो वो लोग बाद में आर्टिस्ट स्टेटमेंट है। आर्टिस्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसमें आपको प्रॉपरली सिंपल शब्दों में, जैसे गोविंद सर ने बताया कि आपको आर्टिस्ट स्टेटमेंट आपका लिखना है, टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। आपका मटेरियल के बारे में, आपको क्यों यूज करते हैं, कोई मटेरियल यूज करते हैं तो आपका उसका रिलेवेंस क्या है आपके काम से, आप आपके काम का इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, ये सब कुछ आपको उसमें आर्टिस्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है। बजट में वापस से आपको सब देना है कि आपका खर्चा कैसे है, कैसे होता है, मतलब आपको अगर ये पैसे मिलते हैं तो आप उसको कैसे यूज करोगे, इसका बजट आपको उनको देना है। $15,000 अगर है तो 15,000 आप किस किस चीज में आप
यूज करोगे। तो मैंने लिखा था कि मुझे मॉडल्स बिठाऊंगी, उनको पे करना होगा, तो उसके लिए फिर स्टूडियो रेंट, फिर मटेरियल, ये सब चीजों मैंने कैलकुलेट करके फिर उनको एक 15,000 का बजट दिया था। अगर आपका प्रोजेक्ट 15,000 के ऊपर होता है तो आप वो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो कहाँ से लाने वाले हैं वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। बाद में लेटर ऑफ रेफरेंस आपको लगता है, एक लेटर ऑफ रेफरेंस आपको लगता है जो आप नहीं अपलोड कर सकते। आपका जो रेफरी है, मेंटोर है, उसको अपने लैपटॉप से, अपने जो डिवाइस है उसमें से वो आपके फॉर्म में अपलोड करना पड़ता है। तो आप जब उनका ईमेल आईडी वहां पे डालते हो, आपके समझो राधा विनोद शर्मा जी मेरे मेंटर थे, तो उनका मैंने ईमेल आईडी वहां पे डाला था, तो उनको मेल गया और उनके मेल में उनको ऐसे आया कि अभी आप आपकी तरफ से लेटर ऑफ रेफरेंस अपलोड करना। तो उन्होंने वहां से लेटर ऑफ रेफरेंस अपलोड किया और फिर वो फॉर्म कंप्लीट हुआ। तो लेटर ऑफ रेफरेंस ये सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट है। आपका पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको लेटर ऑफ रेफरेंस का ये जो है वो करना पड़ता है अपलोड। तो दो ही लैंग्वेज में आप सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, एक तो फ्रेंच या फिर इंग्लिश। और अगर आप आपके लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा उनको। तो बस ये है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसके बारे में और डिटेल बहुत कुछ चीजें जो आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब मैं जो बोल रही हूँ अब बता पाऊंगी उससे ज्यादा उस वेबसाइट पे ही उन्होंने वो दे चुके हैं। और फिर जो भी क्वेश्चंस हमें कभी कभी तकलीफ देते हैं कि क्या है कैसे, तो ये उन्होंने एफएक्यू सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है कि मतलब लोग जैसे कॉमन क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं कि मैं मुझे नहीं पता मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, तो उसका उन्होंने आंसर दिया हुआ है। फिर बाद में उन्होंने ये दिया है कि मतलब किस किस चीजों के लिए मैं ये ग्रांट के पैसे यूज कर सकता हूँ, तो ये सब उन्होंने वहां पे दिया है। तो ये परमानेंट नेचर का कोई भी चीज आप इस पैसों से नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे स्टूडियो खरीदना है इस पैसे से, तो वो नहीं, वो दे पाएंगे। अगर मैं बोलूं मुझे रेंट करना है तो वो देंगे। तो ऐसे बहुत सी चीजें उन्होंने उसमें क्लियर कर दी है। फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस के उन्होंने, आप देख सकते हैं कि ग्रांट के लिए अप्लाई करते उसके बारे में, या ग्रांट के अमाउंट के बारे में, या एलिजिबिलिटी के बारे में हो, या अगर मैं एक्सेप्ट नहीं होता हूँ तो मैं कैसे सेकेंड टाइम अप्लाई करूँ। तो ये सब चीजें उन्होंने इसमें क्लियर की है इस सेक्शन में। तो थोड़ी ये गैलरी है, इसमें उन्होंने काम दिए हैं कुछ। ये देख के आपको आइडिया आ सकता है कि किस टाइप के काम उनको मतलब एक्सपेक्टेड है ग्रांट के लिए। तो ये कुछ, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एक्चुअली लैंडस्केप है, इसमें कोई फिगरेटिव पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कोई रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म है ये, कि ये शेड है या मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं चाहिए उनको। बस इतना ही उनका एक आई थिंक मेन उनका ऑब्जेक्टिव है कि ये रियलिस्टिक। ग्रांट सिर्फ, यस, रियलिस्टिक, कंटेम्पररी रियलिस्टिक आर्ट। फोटो फिनिश भी होने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ जैसा नहीं कि है। मंटू दास को मिला था, उसका काम तो था राइट, रियलिस्टिक। जैसे ये काम, इसमें भी कुछ ऐसे मतलब रियलिस्टिक एलिमेंट नहीं है। तो कुछ काम जो है वो एकदम फोटो रियलिस्टिक भी है, तो वो भी इस मैंडेट में आते हैं। जैसे ये अभी एक नेस्ट का किया हुआ है, तो ये फोटो रियलिस्टिक ऑलमोस्ट किया हुआ है। ये ट्री वाला भी ऐसे लैंडस्केप है। नहीं नहीं, वो राइट, लोग बहुत बहुत चांस देता है यंग आर्टिस्ट को, बहुत मदद करता है। या सो ये कुछ काम है मेरे जो मैंने ग्रांट के लिए भेजे थे। मतलब इसमें से 6 काम मैंने भेजे थे। हम्म। तो
Wow. वाह, खजाना दिखा रही है। तो ये मैंने एक्चुअली ग्रांट मिलने के बाद वाले काम है, जो स्टार्टिंग में थे वो मैंने ग्रांट के लिए भेजे थे, ये बाद में मैंने किए हुए काम है कुछ। बहुत अच्छा काम है निलिशा, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपके काम के बारे में एक्सप्लेन करना ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इसके बारे में। तो जैसे गोविंद सर ने बोला था कि अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है और आपको हेल्प लगती है उस चीज के लिए, तो आपको पहले मेहनत करना है, आपको पहले आपके काम के बारे में सॉर्ट होना है अपने माइंड में। और आपको जो भी लैंग्वेज आती है, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज में आपको वो काम को एक्सप्लेन करना है और उस काम को आपको उसके बारे में लिखना है। तो आर्टिस्ट स्टेटमेंट आपका आपको ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके काम के बारे में और कोई लिखेगा तो वो उसमें वो झलक दिख जाती है सामने वाले को कि ये इस व्यक्ति ने लिखा हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो मन से आता है आपके काम के बारे में, मन से आप ही बात कर सकते हैं। तो इसके वजह से ये एक फ्रेमवर्क जो है वो आपको ही क्रिएट करना है। उसके लिए आप एक बार वो फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाता है तो उसको अच्छे लैंग्वेज में और लिखना और उसको मतलब ये करना, ये तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी से, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके वजह से आपको मतलब जैसे जर्नलिंग, जैसे राधा विनोद सर ने भी मुझे बहुत बार बोला है कि एक डायरी में अपने काम के बारे में या अपने थॉट्स के बारे में लिखते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है जब आप आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिखने बैठते हो तब। सिंपल सा सादा हिसाब, हाँ। सोने का पहले डेली काम करिए, लेकिन इसके लिए डेली नहीं काम करेगा तो इसका मोती एक जोड़ेगा नहीं, एक माला नहीं बना सकता है। डेली काम करना चाहिए, डेली 2 से 4 घंटा डेली मिनिमम, मैक्सिमम 12 घंटा भी करिए, बढ़िया है। लेकिन जो काम किया है ना, सोने का पहले 15 मिनट डायरी वर्क करिए ना, आप क्या किया है, क्या नहीं हुआ है, एकदम गड़बड़ काम हुआ है, पसंद नहीं आया, वो भी तो भी लिखिए। लिखे। नवरस सही। होता है, नौ रस से एक इंसान की फीलिंग्स होता है। नौ रस आएगा तो उसमें लिखा इतना पावरफुल हो गया ना, चिंगार की जैसा निकलेगा आप जो भी करेगा। तो बिल्कुल। डायरी मेंटेन करिए डेली। अच्छा आर्ट हिस्ट्रियन भी हो सकता है शायद, बहुत बढ़िया लगता है पृथ्वी के बारे में, इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आपकी जो राइट। अपन हो ना, कैसे आप खुजली करता है आपको ही मालूम है, दूसरे को आपकी खुजली की जगह मालूम नहीं सही बात है। नहीं, वाकई। मैं बोल रहा था वो जो पॉलक जो है हम्म। उसमें क्या ट्रेडिशनल वर्क देना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैटर जरूरी है? नहीं, उसका उसका भी गैलरी जैसे इसमें है ना ग्रीन शेड में, अच्छा उसमें भी गैलरी दिया हुआ है। अच्छा जो पहले जिनको मिला हुआ है वो एक बार आप देखना, उसमें सभी अलग अलग तरह के हैं। तो उससे और आपके जो काम है उससे आप कंपेयर करके देखना, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं, मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वर्क किया है, फोटोग्राफ लेके उसका फोटो प्रिंट उन्होंने काम में भेजा है। जैसे हिमाली बुटा को मिला था, अगर आप लोग इस साल इंडिया आर्ट फेयर देखे होंगे तो हिमाली बुटा का काम आपने देखा होगा, तो उसको उनको मिला था। तो वो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं और वो गैलरी देख के आप कंपेयर कर सकते हैं किस किस तरह के काम को वहाँ अच्छा, अप्लाई किया है। मीडियम का कुछ इशू है क्या? मीडियम मीडियम में उन्होंने शायद एक क्राफ्ट वगैरह, इसमें जो क्राइटेरिया है ना उनको नहीं अच्छा देते। पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, इन सबको मिलता है, अच्छा अच्छा। ग्राफिक्स को नहीं मतलब मिलेगा। मतलब जैसे वो ग्रीन सील में थोड़ा ट्रेडिशनल वर्क, थोड़ा हाँ, इसमें आप फुल एब्स्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नेचुरलिस्टिक। बिल्कुल। जो मटेरियल दिख रहा है ना, ये सेकंड टाइम मैंने इस पे यूज किया था। ये लेटेक्स है, सिलिकॉन लेटेक्स है। तो इसको पहले मैं पेंटिंग में मास्किंग के लिए यूज करता था, बाद में इसको एज ए मीडियम में यूज किया। तो आप अगर आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है कि न्यू मीडिया को चांस मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैं बोलता हूँ मिलता है। और ये तो मतलब मुझे मिला है, तो इससे आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ। तो सामने सिलिकॉन का बॉटल रखा हुआ है। तो इससे कोई मतलब वो नहीं करते कि आपको कैनवास पे ही होना जरूरी है, पेपर पे होना जरूरी है। वो मिक्स मीडिया को या न्यू मीडिया को वो लोग प्रेफरेंस देते हैं।
कितना इमेज है? उसमें 10 इमेज मांगते हैं। आपके 10 साल का काम, आप एक एक काम दिखा सकते हैं। 5 साल का भेजना है तो 2-2 काम दिखा सकते हैं। अच्छा, उसमें डिटेल कुछ भी नहीं डालना है, सेम यही फॉर्मेट उठा के आपको वहां रखना है। पहले तो डिटेल डालना पड़ता था ना पहले। पहले पहले डालना पड़ता था, अब नहीं डालना पड़ता, क्योंकि वो ऐसा एक किसी ने ऑब्जेक्शन दिया था शायद कि वो नाम देख के जूरी को पता चल जाता है कौन है क्या नहीं। तो वो इस वजह से सिर्फ काम देखे और जूरी डिसाइड करे। अच्छा है वो। ये नेट के ऊपर किया हुआ काम है, जो किनकैन नेट आता है उसके ऊपर किया हुआ काम है। एक चीज नोटिस किया, मेरे को फर्स्ट टाइम जो मिला था ना, उसका फॉर्मेट भी यही था, मतलब इतना बड़ा ही था, वो 4x12 ही था, और वो भी काफी बड़ा था। वो इसमें इंस्टा का लिंक खुलेगा तो हम देखेंगे। वो काम भी ऐसे ही था। तो मेरे को लगता है ना कि अगर लार्ज साइज में आपका काम है तो वो लोग देखते हैं, वो लोग मतलब उस चीज को, मुझे इतना आइडिया है कि उन लोगों ने प्रेफरेंस शायद उस चीज को दिया होगा। देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला काम, इसमें वो नेट यूज नहीं किया। ये मेरे मतलब इस जो ये मटेरियल यूज करने का ये फर्स्ट काम है, फर्स्ट सेकंड काम। तो इसमें मैं उस टाइम पे नेट यूज नहीं करता था, ये एकदम पूरा फ्लेक्सिबल था। आप ऐसे ये करेंगे तो रबड़ जैसा वो हिलेगा। तो बाद में फिर मैंने उसको ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो, किसी को देना करना, क्योंकि ये सब काम शो से सोल्ड हो गए थे, तो वो कैसे देना है वो भी मेरे को एक हेडेक था। क्योंकि न्यू मीडिया मटेरियल है, कई गैलरीज तो बोले कि आप अगर इसका सॉल्यूशन निकाले तो हम उसको अच्छे से ये कर सकते हैं। मैं बोला मैम, ये चीजें आप जमीन के अंदर भी रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी लोग परिचित है ना, सिलिकॉन, रबर और टायर, वो सारी चीजें, ट्यूब जो जमीन के नीचे भी पड़ा रहता है तो कुछ होता नहीं है, वही मटेरियल है ये। और मीडिया कलर कौन सा था? एक्रेलिक? एक्रेलिक, उसके साथ वही मीडियम यूज करके किया हुआ था। और ये बाद में ऊपर से जो ये जो लाल डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये किसी में मैंने बिंदी यूज किया है, किसी में मखमल वाले कपड़े का बॉल यूज किया है। ये सब ग्राफिक्स डिपार्टमेंट का फेंके हुए कचड़े हैं सब, जो आप देख रहे हैं ना, फेंक वाइपिंग करके फेंक देते हैं लोग डस्टबिन में, ये सब वो है। उससे मैंने उसका पूरा सरफेस तैयार किया। फिर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो शायद 1-2 इमेज आएगा इधर। सब उसमें पेपर चिपका चिपका के, करीब है ना मेरे ख्याल से 3-4 mm 5 mm जितना मोटा, 10 mm मोटा किया हुआ है ये। फिर उसके दोनों साइड पेंट किया हुआ है, कट करके उसका नेगेटिव पार्ट निकाल के पॉजिटिव चिपका दिया, नेगेटिव पार्ट कहीं और चिपका दिया। इस तरीके से मैंने इसको डेवलप किया था। ये सारे काम पता है, अभी कुछ काम यहाँ रखे हैं। तुम लोग का टाइम में तो सूरत सही है गबिन, 91 की बात कर रहा हो। यहाँ पे यंग आर्टिस्ट का काम सेल नहीं होता था, कौन खरीदेगा? ओके, सबको मैं लास्ट और एक बार बोलना चाह रहा हूँ, किसको कोई चीज पूछने का है? गौरव? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि काम का साइज कैसे मैटर करते है ये पर? ये जो ग्रीन शील्ड है ना, काम का साइज तो छोटा काम के लिए या ऐसे मैं पूछ रहा था। गौरव एक बात बोलूं? हाँ सर। मिनिएचर भी चलता है, म्यूरल भी चलता है, काम होना चाहिए, बस खुश होना चाहिए तुम्हारा। ओके सर, थैंक यू। तुम्हारा लगना चाहिए तुमने कुछ किया है। उन्नति शुक्ला, कुछ पूछने का? हेलो सर, नो थैंक यू, आप सभी ने इतना अच्छे से ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो सारे डाउट्स क्लियर हैं। Very good, very good, very good. This Thank one you. is first session. We are going to continue. I'm going to bring recently awarded Charles Wells Award, and Charles Wells have 2 different awards. One have actually Melissa, you should try Charles Wells. You know, this is a 3 months course. Go for 3 months. Don't no need to master again. So 3 months course there. You have to apply 2 different studio. चार्ल्स वेल आपको एयर टिकट दे देगा,
रहने का खाने का बंदोबस्त कर देगा, मटेरियल्स का दे देगा, काफी देता है, आपको नौकरी करने का जरूरी नहीं है। तो 3 महीना प्रोफेशनली आप काम कर यहाँ सकते पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्टूडियो है, गैस्ट्रैक स्टूडियो हैं। और एक है डेल्फिना स्टूडियो। तो ओके। दोनों में से अप्लाई कर सकता है। चार्ल्स वेल का और एक अप्लाई कर सकता है, वो है 1 साल की मास्टर डिग्री कोर्स। तो उसमें क्या करने का, जितना सारे आर्ट कॉलेज है यहाँ पे, वहां पे आप अप्लाई करके रख दीजिए और चार्ल्स वेल के टाइम में आप सबमिट करिए। उसके लिए डिटेल्स हम लोग दिखाऊंगा नेक्स्ट मंथ में हम लोग करेगा। और एक तो उसमें हम डिटेल्स बता देगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। 50-60 लाख तक देता है चार्ल्स वेल, जो 1 साल की जो कोर्स है। आपके सामने एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि जैसे हम रेसिडेंसी के लिए तो बहुत सारी जगह अप्लाई करते हैं, मैंने अभी तक किया है, लेकिन रेसिडेंसी का जो प्रपोजल होता है ना, वो लोग कुछ डिफरेंट मांगते हैं। और जैसे मैं कई बार लिखता हूँ तो मैं उन्नति को भेजता हूँ रिफाइन करने के लिए कि वो उसकी इंग्लिश अच्छी है, वो करके देती है मेरे को कई बार। तो कई बार जैसे अगर रेसिडेंसी के लिए कुछ होता है तो उसका कुछ अगर सैंपल मटेरियल आपके पास हो तो जरूर भेजिएगा, क्योंकि वो चीज मुझे देखना है, क्योंकि अभी तक मैंने जिनसे भी मांगा है उनके ऐसा कुछ पुख्ता चीज नहीं मिला है। एक चीज प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अपना इंडिया में हाँ, कोई शेयर नहीं करता है यार, छुपा के रख देता है। वही शेयर करना चाहिए। और एक चीज प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हाँ, कोई मेहनत नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेट इधर से उधर रिसर्च, तुम्हारा रिसर्च हम लेके हम सबमिट कर देगा, हाँ, डॉक्टरेट हम, ऐसा भी होता है। नहीं, पर ये होना एक चीज है कि उसका एक फॉर्मेट जो है, जैसे मेरा जो फॉर्मेट था मैंने वो यूट्यूब में डाला कि कैसे होना चाहिए, लेकिन वो चीजें अगर मिल जाए ना तो कम से कम हम अपने आइडियाज को उसके साथ उस एक फॉर्मेट देख के उस ये फॉर्मेट जो कर रहा हूँ ना हम, जो शाहीनुर का और मेरा जो इंटरेस्ट है ना, जो हम लोग कर रहा हूँ ना, हाँ, वो और जोरदार होगा। एकदम सामने सामने से बात करेगा स्कॉलरशिप लड़का लड़की के साथ। सही, जैसा कि तुमने पुलो के अवार्ड मिला, तुम्हारा सामने डायरेक्ट सबके साथ बात किया है, इसमें ज्यादा फायदा होगा यंग लोग के लिए। बिल्कुल, जैसे कि निलिसा ने 2021 में मिला, इनडायरेक्ट नहीं करके ना हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा, इसके बाद उसको एडिटिंग करके फिर यूट्यूब में भी डालेगा। सही बात, तो ये खुला हो जाएगा ना, खुला कर देते हैं ना मार्केट, छुपा के बिल्कुल चुप सही बात है।